Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. Children, welcome to Social Studies class. In our today's class, we will read and study Chapter 5 of Geography, the Earth's constituent. The Earth is the planet in which the life is in existence. Okay, we all live on Earth. So, Earth is the third planet in solar system. Okay. Okay, Earth is the only planet where life exists. Okay. You know that Earth is the only planet where conditions are suitable for the existence of life. Means यहाँ पर ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग all living things can survive. This is mainly due to the presence of land, water and air. ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि Earth is the planet where land, water and air is present. Okay, you will learn a lot more about these all three essential things which have made the life possible. ओके इन तीनों ने लाइफ पॉसिबल बनाई है, लैंड, वाटर और एयर ने, और इसके बारे में, हमारे प्लैनेट के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स और स्फीयर्स. हमारा अर्थ है उसे हम 3 जोन या स्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. ओके, एंड टिल नाउ you have studied in the earlier chapters about the longitudes and latitudes, the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn, okay, the Arctic Circle, the equator, and you had studied about the movements of Earth, that is rotation and revolution. Okay, so today we are going to study about how life is possible on Earth and what are the zones, okay, zones which are divided. So the earth can be divided into 3 zones. Okay, the first one is lithosphere. Now litho means land. Okay, litho comprises of the soil and the rocks, which means litho means land and sphere means the spherical shape. Okay, the solid portion of earth on which we live is called lithosphere. You know about the crust. Okay, the first and the topmost layer of the land is crust. Okay, earth के अंदर भी बहुत सारे layers हैं. Okay, which you will study in the further chapters, but we will in this chapter we will study about the solid portion of earth. So the solid portion of earth जहाँ पर ज़मीन है, okay, जो रॉक और सॉइल से बना है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. The uppermost solid layer of earth made of rock and soil is lithosphere, and we live on lithosphere. So in lithosphere we have rocks and the thin layer of soil. Okay, we have rocks, we have land. Okay, and out of the total area of lithosphere, about 71% is covered by water. Okay, जितना भी हमारे पास अर्थ के पास लैंड है, वो टोटल एरिया ऑफ लैंड में से 71% ऑफ लैंड इज covered by water and only 29% is our land. Okay, so हमें जो लैंड मास है हमारे वो 29% में है. So if we are dividing our total land, total surface, they can be divided into 2 parts, that is the land mass
known as continents and the huge water bodies known as oceans. Okay, हमें पता है कि 71% of lithosphere is covered by water, so that is ocean basins. Okay, तो वो क्या है? oceans है. Okay, so our land mass is lithosphere is divided into two parts known as continent and ocean basin. Continent में सारे land masses है, huge land masses are known as continent. आपने पढ़ाई होगा अपने लोअर क्लासेस में कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ठीक है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको पता है. तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक पार्ट है लिथोस्फीयर का और दूसरा पार्ट है ओशन बेसिन्स, जो सारे ओशन है, वाटर बॉडीज है. ओके ओके, अभी हम बात करते हैं सेकेंड जोन की, जो है हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जो विच इज कंटेनिंग वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, सो हाइड्रोस्फीयर हमने देखा कि हमारे अर्थ में 3 जोन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. तो हाइड्रोस्फीयर है दैट इज कवर्ड विथ वाटर, यानी सारे ओशन, सारे सी और सारी वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम काउंट करेंगे. The water covers a very big area of Earth's surface and it is called hydrosphere. As I told you that 71% of our total area of lithosphere is covered by water. यानी टोटल लैंड में से हमारे अर्थ में जो भी एरिया है उसमें से 71% वो कवर्ड है पानी से, उसके ऊपर पानी है. ओके, सो 71% which is a big area. Okay, the water covers a very big area of the earth surface and it is called hydrosphere. Because of water our earth appears to be blue. पानी की वजह से हमारा अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है, because its appearance is blue. More than 71% of earth is covered with water and 29% of it is covered with land. अभी 71% अगर हमारे पास वाटर है, then why we are often told to save water? Because this 71% of water is not consumable, यानी हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 71% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है. ओके, फ्रेश वाटर इज लेस देन 1%. 71% में से लेस देन 1% इज फ्रेश वाटर. बाकी का पूरा पानी खारा है. खारा मीन्स सॉल्टी. ओके, सलाइन. सो वी आर टोल्ड टू सेव water, right? So more than 71% of earth is covered with water, forming the oceans and water bodies, and remaining 29% forms the continent. Okay, now hydrosphere. Hydrosphere में हमको पता है कि पानी, हमने बात की कि पूरा पानी से जो कवर्ड है वो. So which are the forms? Okay, which are the different forms of hydrosphere? They are oceans, rivers, ice glaciers, lake, underground water और water vapor. ये सारे hydrosphere के forms हैं. Okay, oceans are the big oceans are the big water body. Rivers are also the water bodies that are originating from mountains. Ice glaciers, जहाँ पर आइस जमी हुई है, वैसे जो बहुत ही कोल्ड रीजन्स है वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. लेक यानी कि जो छोटे छोटे झील है, ओके, लेक्स है आसपास,
वो लेक्स भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर नीचे है, ठीक है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और वाटर वेपर, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। नाउ द थर्ड जोन इज एटमोस्फियर। The third zone or the third part, okay, is atmosphere. Atmosphere consists of air, ठीक है। एटमोसफियर मीन्स इट कंटेन्स एयर, और एयर में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ओके। सो द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। अर्थ के आसपास भी लेयर्स है, ओके। अराउंड द प्लैनेट अर्थ एंड इनसाइड द प्लैनेट अर्थ वी आर हैविंग एटमोसफियर, यानी वी आर हैविंग layers of air which protect us, okay. So the gaseous layer that surrounds the earth is atmosphere. जो एयर है जिसमें gaseous layers है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं एटमोसफियर. सो द एयर अराउंड अस forms our atmosphere, and inside the earth also we are having air, as well as around the planet earth also we are having the layers of earth, layers of air, okay. And as I told you, the thin blanket of air is important aspect of the planet. ये planet के आसपास जो है वो यहाँ तक हमें एटमोसफियर के जो लेयर्स है वो कवर्ड है. सो द इट इज़ लाइक अ थिन ब्लैंकेट, जैसे इट इज़ कंपेयर्ड विद द थिन ब्लैंकेट. थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट. इसी की वजह से वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी रेज ऑफ sun. Okay, we receive sun rays, right? In our previous chapter we had studied that के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से हमें सन रेज है वो और सीजन्स है वो हमें मिलती है. ओके, डे और नाइट होता है और सीजन्स भी चेंज हमें मिलता है, एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी. बट सन है दैट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ हीट. ओके, it is like a huge ball of heat which has harmful rays also, which is harmful for us also. So अर्थ के आसपास एक थिन ब्लैंकेट या थिन लेयर हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से हमारा जो सन रेज है वो, उसमें जो हार्मफुल रेज है वो हम पे डायरेक्टली नहीं आती. ओके, और आपने ये भी सुना होगा कि हम लोगों को पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. ओके, तो ये सब आपने सुना होगा कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट ड्राइव द व्हीकल्स कॉजिंग पोल्यूशन, एंड वी शुड वी शुड सेव द petrol, and all these things you have heard. This is because we have to save our resources. Okay, ये resources हमें संभाल कर यूज़ करने हैं. और हमने सुना है कि इतना पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से ये जो थिन ब्लैंकेट है उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं होल्स हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि फिर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली नीचे आ सकती है. ओके, यानी अर्थ के अंदर आ सकती है. सो if we will not take care and if we will pollute our earth, then all the three zones, यानी हर एक तीन जो एलिमेंट्स हमने पढ़े, लैंड, वाटर और एयर, अगर हम तीनों को पॉल्यूट करेंगे तो later on we will face troubles, the future generation will face trouble. So we have to take care of this planet to maintain the survival. अगर लाइफ एग्जिस्टेंस अगर रखना है तो हमें प्लैनेट को पॉल्यूट नहीं करना है. ओके, सो द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ अराउंड द अर्थ ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. अभी एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ठीक है, हमने पढ़ा है साइंस में, आपने पढ़ा है
कि ऑक्सीजन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है और अदर गैसेस भी होते हैं. ओके, सो यू हैव स्टडीड दैट composition of air in science. Okay, so because of the atmosphere and air and all the accurate proportion, अगर किसी एक गैस का proportion कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी we will face troubles. Okay, so we have to maintain the atmosphere also. Okay, ये जो 3 zones है, ये जो 3 zones है वो एक चौथा जोन बनाती है. मतलब कि ये जो 3 पार्ट्स है उनके कॉम्बिनेशन से, उनके ओवरलैपिंग से हमें एक चौथा जोन मिलता है, बायोस्फीयर. ओके, बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो सके वैसा. ओके, द नैरो जोन विच वी फाइंड लैंड, एयर एंड टुगेदर. ओके, जो नैरो जोन जहाँ पर हमें वाटर, एयर और लैंड तीनों चीज़ें जब हमें साथ में मिलती है. ओके, ये तीनों जो साथ में मिलती है हमारे लिए और हम यहाँ पर रह सकते हैं, तो ये जो जोन है वो बायोस्फीयर है. द नैरो जोन विच वेयर वी फाइंड लैंड, जहाँ पर हमें लैंड, वाटर और एयर साथ में मिलती है. ओके, वेयर वी गेट ऑल दिस 3 elements of life together, and this makes the possibility of life. Okay, and this contains all the forms of life. Okay, यहाँ पर हर तरीके के लिविंग क्रिएचर्स हमें देखने को मिलते हैं इस जोन में. यानी जब 3 जोन है वो साथ में आती है तो जो इंटरेक्शन होता है, जो ओवरलैपिंग होता है, वो जो जोन है उसमें हमें लाइफ एक्सिस्टेंस देखने को मिलती है. बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड insects and all the types of creatures exist in biosphere. They live in biosphere. Okay children, this is the overview of all the zones of the planet Earth. Okay, this is the summary of what we are going to study in detail. ओके, हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे जो लिथोस्फीयर में आएंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जिसमें आएंगे काफ़ी वाटर बॉडीज़. और फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, जिसमें सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आने वाली है. ओके, हाइड्रोस्फीयर में ओशंस के बारे में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और लेयर्स पढ़ेंगे. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. ओके, हम बायोस्फीयर के बारे में भी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एक्सिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. ओके, एंड try to understand this chapter. Okay children, hope you enjoyed this video. Bye.